Hello dear students, today we will see exercise 1.1. In this exercise we will solve question number 1, question number 2 and question number 3. Before to start the exercise, so already we have seen the synopsis of these chapters, okay? So in that synopsis we have already discussed imaginary number, conjugate of complex number and equality of complex number. तो इन 3 पॉइंट के ऊपर हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ओके? सो सबसे पहले देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ऑलरेडी हमने देखा है लेकिन और एक बार हम रिपीट करेंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -16 है, यानी कि निगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये जो नंबर होगा इमेजिनरी नंबर होगा, ओके? सो स्क्वायर रूट -16 कैन बी रिटन एज 4i। ये नंबर बी आई की तरह दिखता है। दिस बी इज द रियल नंबर एंड आई विच इज स्क्वायर रूट -1, ओके? अब उसके बाद कॉन्जुगेट देखना है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? इफ z इक्वल्स टू a प्लस ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी कि z बार फाइंड करना है। सो जस्ट रिप्लेस द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो z बार इक्वल्स टू a माइनस ib। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऑलरेडी देखा था सिनॉप्सिस में। वी डिस्कस इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फर्स्ट वीडियो। So what is equality of complex number? When we say two complex number are equal, okay? Suppose students a plus ib equals to c plus id. These two are complex number are equal if and only if their real parts are equal and imaginary parts are equal. It means that a equals to c and b equals to d. अब हमें exercise solve करना है. So let's see exercise 1.1. Today we'll solve exercise 1.1, okay? So my first question is simplify. Here students, the first example is square root -16 plus 3 square root -25 plus square root -36 minus square root -625. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये जो नंबर है हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ओके? तो नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट -4 विच इज 2i, ओके? तो माइनस स्क्वायर रूट 4 कैन बी रिटन एज square root -1 into square root 4, but square root -1 which is iota and square root of 4 which is 2i, so 2i is the imaginary number. तो सबसे पहले हमें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उनको इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट कर। स्टूडेंट्स, हियर स्क्वायर रूट -16 कैन बी रिटन एज 4 iota, okay? Because square root -16 can be written as square root -16 can be written as square root -1 into square root 16, but square root -1 which is iota and square root 16 which is 4, okay? तो 4i can write this as 4i. तो यहाँ पे क्या आएगा 4i. अब यहाँ पे देखो 3 as it is. Here square root -25 can be written as 5 iota plus here square root -36 can be written as 6 iota minus sign square root -625 which can be written as 25 iota, okay? अब स्टूडेंट्स आपको ये क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। ईच एंड एवरी टर्म्स आर नथिंग बट इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे हर एक नंबर इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे 4i एज इट इज 5 इंटू सॉरी हियर 3 इंटू 5 है, सो विच इज 15i, यहाँ पे 6i माइनस 25i। अब आपको यहाँ पे एडिशन करनी है विच इज इक्वल्स टू 4i प्लस 15i विच इज 19i, 19i प्लस 6i विच इज 25i and 25i minus 25i which is 0, okay? So first of all I will write this addition, that is 19i plus 6 iota minus 25 iota equals to, so 19i plus 6i which is 25i minus 25i as it is, so 25i minus 25i which is 0, okay? So this is the simplification of this number, okay?
and this number can be written as 0 plus 0I. Okay, so minus square root minus 16 plus 3 square root minus 25 plus square root minus 36 minus square root minus 625 can be written as 0 plus 0I. Okay, so look at next example. So second example is 4 square root minus 4 plus 5 square root minus 9 minus 3 square root minus 16. अब जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस निगेटिव नंबर है उसे हमें इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि बी आई के फॉर्म में लिखना है. तो चलो हम सॉल्व करेंगे इसे. सो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 विच इज नथिंग बट 2i प्लस 5 एज इट इज. स्क्वायर रूट ऑफ -9 कैन बी रिटन एज 3i minus 3 as it is. Square root of -16 can be written as 4i. अब आपको स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा. देखो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है 4 इंटू 2i. ओके, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 यानी कि 8i प्लस 5 इंटू 3i विच इज 15i माइनस 3 इंटू 4i विच इज 12i. ओके, सो यू कैन टेक एडिशन हियर. दिस इज 8i as it is. 15i minus 12i which is 3i, that is 3i. 8i plus 3i which is 11 iota. ओके, देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में ऐड किया है. ओके, यू कैन डू, सपोज दिस इज द एग्जांपल 2 plus 3i. ओके, you can't write 5i. ओके, because these two parts are different. ओके, this is real part and this is imaginary part. आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है. तो यहाँ पे 8i इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे 3i इज आल्सो इमेजिनरी नंबर. यू कैन ऐड देम. ओके, सो इट बिकम्स 11i. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज राइट कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर. सो माय फर्स्ट एग्जांपल इज 3 plus iota. ओके, आपको पता है कॉन्जुगेट क्या होता है. सपोज z इक्वल्स टू a plus ib एंड इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि z बार. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिनोटेड बाय z बार. सिंपली आपको जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना है. यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट i भी है, इसका साइन प्लस है तो निगेटिव करना है. यहाँ पे a माइनस आई भी होगा. ओके, तो a 3 plus i इस नंबर का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा, उसका साइन प्लस है तो मुझे z बार क्या मिलेगा, 3 minus iota. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 3 minus iota लिखा है. यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, उसका साइन क्या है, निगेटिव है. तो सिंपली उसको चेंज करना है. मुझे z बार क्या मिलेगा, 3 plus iota. ओके, थर्ड एग्जांपल माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 7i. ओके, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ऑफ द फॉर्म a plus ib. यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रूट -7i, इसका साइन जो है ना यहाँ पे निगेटिव है तो सिंपली उसको चेंज करना है. आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो माइनस स्क्वायर रूट 5 यानी कि रियल पार्ट एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है उसे चेंज करना है. प्लस होगा स्क्वायर रूट 7i. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, माइनस स्क्वायर रूट -5. अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो नंबर दिया है स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव, तो सबसे पहले हमें इसको इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि a plus ib में लिखना होगा. तो देखो ये जो नंबर है z, सपोज कंसीडर दिस नंबर एज z minus square root -5. ओके, सो दिस नंबर कैन बी रिटन एज माइनस एज इट इज, बट स्क्वायर रूट ऑफ -5 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 5 iota. ओके, and this is the imaginary part. Okay, so this imaginary part having sign negative, we can change it. So z bar becomes plus square root 5i. Okay, तो इस प्रकार हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है. नेक्स्ट एग्जांपल 5i. ओके, ऑलरेडी दिस इज इमेजिनरी नंबर. ओके, तो यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है. इस इमेजिनरी नंबर का जो साइन, इस इमेजिनरी नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें इसका चेंज करना होगा साइन. तो यहाँ पे z बार क्या आएगा, सपोज दिस नंबर एज z, तो z बार क्या मिलेगा, -5i. सिंपली आपको इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. ये जो 5i पॉजिटिव था अब मुझे निगेटिव मिलेगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा. ओके,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, उसका साइन जो निगेटिव है इसको हमें चेंज करना है। सबसे पहले इस नंबर को z कंसिडर करना है। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि रियल पार्ट एज इट इज आएगा। सिंपली आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है इनटू आयोटा। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा, इस तरह कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ओके, दिस पार्ट इज वेरी सिंपल। आपको सिंपली क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ओके, सो अदर टू एग्जांपल्स यू कैन डू एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जांपल इज a minus b plus a plus b iota equals to a plus 5i। ओके, दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको दोनों साइड कंपेयर करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा था, इफ टू नंबर्स आर इक्वल, if two complex number are equal then their real parts are equal and imaginary part also equal। तो यहाँ पे कंपेयर करके आपको क्या मिलने वाला है, देखो ये जो रियल पार्ट है इस रियल पार्ट से इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट को इक्वल होगा। a minus b is the real part of left hand side and this a is the real part on right hand side। this a plus b is the imaginary part for left hand side and this 5 is the imaginary part for right hand side। अब कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, a minus b equals to a मिलेगा। ओके, एंड a plus b equals to 5 मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, a माइनस करना होगा। मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी a माइनस a, तो माइनस बी इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ओके, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपली 0 मिलेगी। इस माइनस को शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके आपको 0 मिलेगा। सो वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 0। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, सो जस्ट पुट दिस b इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट a प्लस 0 equals to 5। okay, so here b equals to 0, that is the reason। okay, so you should write the reason in front of equation। okay, so you will get a plus 0 which is a equals to 5, so value of a equals to 5 and value of b equals to 0। okay, so these are the two value। देखो क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिखता है। a माइनस बी रियल नंबर है, a प्लस बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो a प्लस बी क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर। राइट हैंड साइड में a प्लस 5i, ये जो नंबर है a प्लस बी आई की तरह दिखता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है a विच इज रियल पार्ट, अब 5i इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे a इज द रियल नंबर एंड 5 इज द इमेजिनरी नंबर। तो दोनों साइड कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है साइमल्टेनियसली, यू कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो सिंपली आपको b की वैल्यू मिलेगी, तो b इक्वल्स टू 0। ये जो b की वैल्यू है यहाँ पे सिंपली पुट करनी है। ओके, a प्लस 0 इक्वल्स टू 5 मिलेगा, तो a इक्वल्स टू 5। ओके, सो इस प्रकार आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। so look at this example, which is very simple। a plus b into 2 plus I equals to b plus 1 plus 10 plus 2a iota। ओके, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसे हमें a प्लस आई बी में लिखना होगा। तो a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई, this is the multiplication of two brackets, so you should write here a into 2, that is 2a, a into I which is ai, plus sign b into 2 2b, plus b into I bi, equals to right hand side as it is, because b plus 1 which is real part and plus 10 plus 2a which is imaginary part। okay, अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करना है। यहाँ पे 2a एंड 2b, दिस टू आर रियल पार्ट्स
and AI, BI, these are imaginary part. So you will get 2A plus 2B, which is 2A plus 2B in bracket AI plus BI. This can be written as iota A plus B. I have taken I as common because both the terms contains iota. So and right hand side as it is. So B plus 1 plus 10 plus 2A iota. अब देखो यहाँ पे दोनों साइड कंपेयर करके आपको रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट लेना होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है, यहाँ पे एक रियल पार्ट है, तो आपको क्या मिलेगा 2A प्लस 2B इक्वल्स टू B प्लस 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे A प्लस B, तो यहाँ पे A प्लस B इक्वल्स टू 10 प्लस 2A मिलेगा. ओके, देखो अब आपको इस B को शिफ्ट करना होगा यहाँ पे B. You can shift this B on left hand side, so you will get 2A 2B minus B, that is plus B only equals to 1. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इस 2A को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आपको क्या मिलेगा A माइनस 2A. 2A यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जाके निगेटिव होगा, A माइनस 2A, तो माइनस A प्लस B इक्वल्स टू 10 मिलेगा. देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल रहे हैं. We can solve simultaneously. Okay, two equations, two unknowns. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, तो subtraction करके मुझे क्या मिलेगा 2A plus B equals to 1 और minus A plus B equals to 10. subtraction करके मुझे यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो 2A plus A, that is 3A, B minus B which is 0 equals to 1 minus 10 minus 9. अब आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या मिलेगी A की वैल्यू, बोलो, इस 3 को शिफ्ट करना है, तो माइनस 3/3 होगा, यानी कि माइनस 3. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A. अब आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, यू कैन पुट A इक्वल्स टू -3 एनी वन ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो देयर आर टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो आपको A इक्वल्स टू -3 यहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में. तो आपको क्या मिलेगा देखो -A. ओके, -A, तो A की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस B इक्वल्स टू 10. ओके, आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B इक्वल्स टू 10 - 3, बट 10 - 3 विच इज 7. ओके, तो B इक्वल्स टू क्या मिला 7. ओके, so value of A equals to -3 and value of B equals to 7. ओके, तो इस प्रकार हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी. देखो हमने क्या किया था, ये जो गिवन इक्वेशन था, यहाँ पे ये जो नंबर था A प्लस IB के फॉर्म में लिखना होगा. तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने इस नंबर को A प्लस IB के फॉर्म में लिखा है. देखो ये जो नंबर 2A plus 2B रियल पार्ट, iota A plus B. ओके, so this number looks like A plus IB form, and already on right hand side there is a number in the form A plus IB. दोनों साइड कंपेयर करके रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको A और B की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन, दो अननोन्स है. ओके, सो इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन नंबर्स. लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज ABI इक्वल्स टू 3A minus B plus 12I. अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो देयर इज ओनली ABI, इट मींस दैट इट कंटेन्स ओनली इमेजिनरी पार्ट. ओके, सो रियल पार्ट इज एब्सेंट, सो यू शुड राइट दिस नंबर एज 0 plus ABI. ओके, अब राइट हैंड साइड में 3A minus B plus 12I. ओके, तो 12I is the imaginary number and remaining parts becomes real part. So 3A minus B is the real part. Okay, so you can compare both the sides because both are complex number. Okay, so real part with real part, imaginary part with imaginary part. So this 0 is the real part and 3A minus B is also a real part. AB is imaginary part and 12 is imaginary part. Okay,
तो कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, देखो ये 0 है तो 0 इक्वल्स टू 3a माइनस बी मिलेगा, यानी कि 3a माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू 12। ओके, तो रियल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर इक्वल्स टू इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे दो इक्वेशन है, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ए बी इक्वल्स टू 12। ओके, so we can write this equation as 3a equals to b. Okay, so we shift this minus b on right hand side, so 3a equals to b। अब आपको क्या करना है, ये जो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, तो पुट दिस b equals to 3a in this equation, so you will get a into b equals to 3a equals to 12। okay, अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, a इंटू 3a विच इज 3a स्क्वेयर इक्वल्स टू 12। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 3 को शिफ्ट करना होगा, तो a स्क्वेयर क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वेयर इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 यानी कि 4। ओके, अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, सो व्हाट विल बी a, इट इज प्लस माइनस 2। ओके, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट a इक्वल्स टू प्लस 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करना होगा, a इक्वल्स टू प्लस 2 को यहाँ पे पुट करके आपको b की वैल्यू मिलेगी, और एक b की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे a इक्वल्स टू माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको b की अलग वैल्यू मिलेगी। तो देखो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है, प्लस 2 है, तो यहाँ पे पुट करके आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 b। ओके, so 3 into 2 which is 6, that is b equals to 6। okay, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 6। अब आपको a equals to माइनस 2 लेके b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो b equals to a equals to माइनस 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू b, तो मुझे b की वैल्यू माइनस 6 मिलेगी, तो b इक्वल्स टू माइनस 6। ओके, सो 3 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 6। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू 2, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिली है, 6। ओके, सो फॉर a इक्वल्स टू माइनस 2 यू विल गेट b इक्वल्स टू माइनस 6। तो इस प्रकार हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मेन टारगेट याद रखना है आपको, दोनों साइड में जो नंबर होंगे उसे पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे a b i था, सबसे पहले इसे मैंने a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखा। ओके, तो यहाँ पे रियल पार्ट नहीं था, अब्सेंट था, तो अब्सेंट रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ओके, और ए बी आई इज द इमेजिनरी पार्ट है, तो 0 प्लस ए बी आई इक्वल्स टू, अब ए जो देखो 12i इमेजिनरी पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा, तो 3a माइनस बी पूरा रियल पार्ट होगा, तो 3a माइनस बी प्लस 12i। अब स्टूडेंट्स आपको दोनों पार्ट कंपेयर करना है, दोनों पार्ट कंपेयर करके आपको रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ओके, तो साइमल्टेनियसली यू कैन सॉल्व इक्वेशन, you will get the required values of a and values of b। okay, so this is the simple way। next example students, 1 upon a plus ib equals to 3 minus 2i। तो इस इक्वेशन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दिख रहा है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं, सबसे पहले इस नंबर को हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना होगा। देखो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन दिख रहा है, आपने देखा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, सो यू शुड राइट हियर 1 अपॉन a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2i एज इट इज। ओके, ये देखो ये जो डिवीजन थी, तो इस डिवीजन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 इंटू ए माइनस आई बी दैट इज ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, जिस तरह हमने देखा था ना c प्लस आई डी सी माइनस आई डी का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वेयर
प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ओके, इक्वल्स टू 3 माइनस 2i। अब स्टूडेंट देखो, इस नंबर को हम आसानी से a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। सो यू कैन राइट दिस नंबर एज a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा इक्वल्स टू 3 minus 2i, okay. Now students, on left hand side there is a complex number, and on right hand side there is also a complex number. You can compare both the sides, real part with real part, imaginary part with imaginary part, okay. अब आपको क्या मिलने वाला है, देखो, जो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। i का जो कोएफिशिएंट होता है, i के साथ जो नंबर आता है उसे इस i के साथ जो नंबर आता है उससे कंपेयर करना होगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। So you can divide equation number 1 and equation number 2, okay. So this equation, it is nothing but first equation, and this is second equation. You can divide so that easily you can find value of a and b, okay. So divide these two numbers. You will get a divided by a square plus b square whole divided by b upon a square plus b square. तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज नथिंग बट 3 अपॉन 2, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, इनका डिवीजन करके आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा, a अपॉन बी। तो यहाँ पे सिंपली आपको a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या लिखना है, 3 अपॉन 2, ओके। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंपेयर करना है बोथ साइड्स, ओके। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या है, 2, ओके। सो हियर a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2। तो इस प्रकार हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। सो दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले याद क्या रखना है, जो नंबर हमें दिया है सबसे पहले उसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना होगा, ताकि हमें आसानी से हम रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट विथ रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन a प्लस आई बी, so you should multiply this numerator and denominator by complex conjugate of denominator. Here a plus ib is the denominator, its complex conjugate it is a minus ib, okay. So I multiplied numerator and denominator by a minus ib. So you will get a minus ib in numerator, and in denominator you will get a square plus b square, okay. So you can take multiplication of these two numbers as a rough. So you will get a square plus b square equals to the right hand side as it is, because it is already in a plus ib form. So you should write this left hand side in a plus ib form. A square plus b square is the real number, okay. So you can separate it. So a upon a square plus b square, this minus sign as it is, b upon a square plus b square आएगा into iota equals to 3 minus 2i as it is. अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों साइड कंपेयर करके आपको a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मिलेगा, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मिलेगा। अब साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वे, ये जो नंबर है फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकंड वाला इक्वेशन डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको दोनों का डिनोमिनेटर डिलीट होगा या कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिलीट होगा, सिर्फ क्या बचेगा, a अपॉन b, और राइट हैंड साइड में एज इट इज लिखना होगा 3 अपॉन 2। तो a अपॉन बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 मिलेगा। दोनों साइड कंपेयर करना है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। सो a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2, दिस इज द करेक्ट वैल्यूज।